اور اب عالمی منظر کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ وہ مشرق وسطی یروشلم میں جلد ہی 5000 یہودی مکانوں کے تعمیر کا کام شروع کریں گے۔ فلسطینیوں کی تنقید اور مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نے نئے مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کو یہودی بستیوں کی تعمیر کے معاملے میں بین الاقوامی تنقیدوں کا سامنا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی منصوبے میں اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ היום אני מודיע על הקמת הר חומה ה', שכונה שבה נקים 2,200 יחידות דיור. זה עוד כ-12,000 תושבים. הר חומה תהיה שכונה של 50,000 תושבים. זה כמו עיר בינונית בישראל, רק בשכונה כאן. עשינו את זה אז אל מול התנגדות בינלאומית עזה. התגברנו על כל המכשולים ועשינו את זה, וראו מה עשינו לירושלים. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کو ریاض میں سعودی عرب کے شاہ سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مائک پومپیو نے شاہ سلمان کے ساتھ خطے میں سیکیورٹی کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں ترجیحی بنیاد پر ایران سے لاحق مبینہ خطرات پر توجہ مرکوز رہی۔ سعودی شاہ سے ملاقات کے بعد پومپیو سعودی سرزمین پر قائم پرنس سلطان ایئر بیس کا دورہ کیا، جہاں قریب 2500 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب بااعتماد اتحادی ممالک ہیں۔ خبر ایران سے، جہاں پارلیمانی انتخابات کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے لوگوں سے ووٹنگ کے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے انتخابی عمل میں حصہ لینے کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے درمیان اس الیکشن کو موجودہ حکومت کی عوام میں مقبولیت کے لیے امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سن 2015 میں امریکہ کی جوہری ڈیل سے علیحدگی اور پابندیوں کی بحالی کے بعد ایران میں ہونے والا یہ پہلا انتخاب ہے۔ وہیں انتخابات سے پہلے ہزاروں امیدواروں کو نااہل قرار دیے جانے پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس معاملے پر صفائی دیتے ہوئے چناؤ کی نگرانی کرنے والے ادارے گارجین کونسل نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق ہی ان امیدواروں کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ جرمنی کے جنوب مغربی شہر ہناؤ میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں ہلاک ہوئے افراد کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ مشتبہ حملہ ور اپنے مکان میں جمعرات کی صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ مقامی پولیس کو اس کے گھر سے ایک اور لاش ملی، تاہم اس بارے میں فی الحال مزید تفصیلات دستیاب نہیں۔ جرمنی کے مغربی شہر ہناؤ میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق ایک مسلح شخص نے شہر کے کم از کم 2 شیشہ بارز میں بدھ کی شب فائرنگ کی۔ فائرنگ کے وقت دونوں شیشہ بارز میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فائرنگ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جن کا علاج چل رہا ہے۔ کم از کم 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے کئی گھنٹے بعد انہیں مشتبہ حملہ آور کی لاش اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ حکام کو مشتبہ حملہ آور کے گھر سے ایک اور لاش بھی ملی ہے، جس کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ان حملوں کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اپنے مکان میں پناہ لی تھی۔ پولیس کے مطابق تاحال حملے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی ایسے شواہد ملے ہیں جن سے یہ لگے کہ حملے میں 1 سے زائد افراد ملوث تھے۔ فائرنگ کا پہلا واقعہ فرینکفرٹ سے 25 کلومیٹر دور ہناؤ شہر کے مرکزی علاقے میں واقع مڈ نائٹ شیشہ بار میں پیش آیا۔ دہشت گردی کے معاملات کی تحقیقات کرنے والے جرمن فیڈرل پروسیکیوٹرز نے اس معاملے کی تحقیقات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ادارے کے ترجمان نے بتایا کہ ان ہلاکتوں کے پیچھے نسل پرستانہ محرک ہی دکھائی دیتا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 درجن کے قریب گولیاں چلنے کی آوازیں سنی اور یہاں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور اس کارروائی کے بعد ایک گہرے رنگ کی گاڑی میں کیسلتات نامی علاقے کی جانب کیا، جہاں اس نے ایرنا بار اور کیفے نامی ریسٹورانٹ میں فائرنگ کی، جس میں متعدد افراد مارے گئے۔ جرمن میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مشتبہ حملہ آور
जर्मन शहरी है और पुलिस को उसकी कार से असलहा भी मिला है और उसके पास असलहा रखने का लाइसेंस था। हुनाव की आबादी लगभग 1 लाख है और ये जर्मनी के मुआशी मरकज फ्रैंकफर्ट से 20 किलोमीटर मशरक में वाक़ है। शहरी इंतजामिया ने फायरिंग के वाक़यात को शहर की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया है। हुनाव के मेयर ने कहा कि ये एक खौफनाक रात थी और इससे बदतर रात का तस्वुर नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने जुनूब मगरबी शहर हुनाव में फायरिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मर्केल का कहना है कि इस तरह के वाकयात नस्ली बुनियाद पर जर्मनी को तकसीम करने की कोशिश है। मर्केल ने कहा कि मामले की तफ्तीश जारी है और जांच के बाद ही कोई हतमी फैसला किया जा सकेगा। Eine Bewertung ist es noch zu früh. Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde bis ins Letzte aufzuklären. Doch weist derzeit vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt hat, aus Hass gegen Menschen mit anderer Herkunft, anderem Glauben oder anderem Aussehen. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मनी में हुई फायरिंग में हलाकतों पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। तुर्क सदर एर्दोगान हुनाव फायरिंग में हलाक हुए अफराद के अहले खाना के तईं ताज़ियत करते हुए इनके लिए सब्र जमील की दुआएं की। Dün gece Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. आगे बढ़ेंगे। अफगान तालिबान का कहना है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान में फरीकैन पहले पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने के हवाले से एक आलामिया जारी करेंगे। तालिबान का कहना है कि इसके बाद रवा माह के आखिर तक अमन मुआहिदा होगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कायम तालिबान के दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान में फरीकैन पहले पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने के हवाले से एक एलामिया जारी करेंगे और फिर इस महीने के आखिर तक अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सुहेल शाहीन के मुताबिक एलामिया जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसमें ये तारीख बाकायदा तहरीर की जाएगी कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत कब किए जाएंगे। तालिबान तर्जुमान ने यह भी कहा कि दोनों जानिब से मुआहदे पर दस्तखत या मुआहदे से कुछ रोज पहले अफगानिस्तान में पुरअमन माहौल कायम किया जाएगा और वो इस बात पर साबित कदम रहेंगे। तालिबान जराये का कहना है कि एलामिया आज या कल जारी हो सकता है और तशद्दुद की रोकथाम की मुमकिना तारीख 22 फरवरी होगी। जराये ने मजीद बताया कि पुरअमन फिजा 1 हफ्ते तक जारी रहेगी, जिसमें दोनों जानिब से किसी किस्म की तशद्दुद की कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। दोनों जानिब से उस पुरअमन माहौल की निगरानी भी की जाएगी और फिर उसके बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। ख्याल है कि गुज़िश्ता साल सितंबर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ 1 साल तवील अमन मुज़ाकरात को मुअत्तल करते हुए कहा था कि तालिबान से बातचीत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इन मुज़ाकरात की मुअत्तली की वजह मुज़ाकरात के दौरान काबुल में एक हमला बताया गया था। ताहम अफगान हुकूमत ने उस मौके पर कहा था कि वो देरपा अमन के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो उनके साथ मिलकर क़याम अमन के लिए काम करें। बाद-अज़ां दिसंबर 2019 में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ुल्म खलीलजाद ने कतर में दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए थे। अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और दोनों जानिब से मुज़ाकरात कामयाब करार दिए जा चुके हैं, जिसके नतीजे में अमरीका अफगानिस्तान से बतदरीज अपनी फौजें निकालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर अफगानिस्तान के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान के साथ अमन मुआहिदा तय करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। अशरफ गनी ने सदारती इंतखाबात में अपनी कामयाबी को खुश आइंद करार दिया है।
अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात में एक मरतबा फिर अपनी कामयाबी को सदर अशरफ गनी ने खुश आइन करार दिया है। दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अशरफ गनी ने कहा कि अमन मुज़ाकरात का हतमी फैसला अफगान आवाम ही करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ कोई खुफिया फैसला मुमकिन नहीं होगा। अफगान सदर ने कहा कि हम हिम्मत और मकसद के साथ अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। वहीं तालिबान ने सदारती इंतखाबात में अशरफ गनी की कामयाबी के ऐलान को मायूस कुन करार दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक बयान में कहा है कि अशरफ गनी का ओहदे सदारत के लिए दोबारा इंतखाब गैर कानूनी और अफगान अमन अमल की खिलाफ वर्जी है। अशरफ गनी के हरीफ अब्दुल्ला भी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए दावा कर चुके हैं कि दरअसल इनकी इंतखाबी टीम की जीत हुई है। इंतखाबी नताइज में दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार अब्दुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज को मानने से इनकार करते हुए अशरफ गनी के मुतवाजी अपनी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम शफाफ और बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जीती है और हम अपनी फतह का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान करदा नतीजा जमहूरियत का तख्ता उलटने के मुतरादिफ है। ये अवाम की राय चोरी करने का मामला है जिसे हम नाजायज समझते हैं। इन्होंने कहा कि धांधली करने वाले तारीख में रुसवा होंगे। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के माविन मिशन ने एक बयान में कहा है कि वो नई अफगान इंतजामिया का खैरमकदम करता है और इसके साथ काम करने का मुंतज़िर है। मिशन ने कहा है कि इदारे को अफगानिस्तान की आबादी के तनव्वुर की अहमियत का मुकम्मल इदराक है और हम उन अफगानों की बहादुरी के मोतरिफ हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के संगीन खदशात के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लिया। हम जमहूरी अमल जारी रखने के लिए इन दिलेर वोटरों के अज़्म को सराहते हैं। वहीं वाशिंगटन में महकमे दिफा पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान को पुरअमन और मुस्तहकम मुल्क बनाने के अज़्म पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर शाम से है, जहां के शुमाली सूबे इदलिब पर कंट्रोल हासिल करने के लिए शामी फौज हमले जारी रखे हुए है, जबकि बागी इस इलाके पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए पूरी ताकत के साथ मज़ाहमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इदलिब मैदान जंग बना हुआ है। शाम का शुमाली सूबा इदलिब वो वाहिद इलाका है जहां सदर बशार अल असद की मुख्तालिफ क़ुव्वतों का कंट्रोल है। ईरानी मिलिशिया और रूसी फ़िज़ाई हमलों की मदद से शामी हुकूमत मुतवातिर इदलिब में दाखिल होने की कोशिश जारी रखे हुए है। दर्जनों कस्बे और देहात शामी हुकूमत की फौज ने कंट्रोल में ले लिए हैं। एक अहम हाईवे भी शामी फोर्सेस के कंट्रोल में है। ये मुल्क की माशी शहरग है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक दिसंबर के बाद से इस मार्के में तेजी आने के बाद से तकरीबन 9 लाख लोग, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं, नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि 2018 में तुर्की, ईरान और रूस की मदद से किया गया अमन मुआहिदा खत्म कर दिया गया है। तुर्की शामी बागियों की हिमायत कर रहा है, जबकि रूस शामी हुकूमत को ताउन फराहम कर रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वार्निंग दी है कि अगर फरवरी तक शामी फौजी इदलिब से वापस नहीं गए तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। बरतानिया में कायम शामी जंग की निगरानी करने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि 1240 तुर्क जंगी गाड़ियां इदलिब में दाखिल हो चुकी हैं और इनमें तकरीबन 5000 फौजी भी हैं। 2015 में हुकूमती कंट्रोल खत्म होने के बाद से इदलिब का कंट्रोल मुतअद्दिद हरीफ गिरोहों के पास रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक इदलिब में 3 मिलियन लोग बसते हैं, जिनमें बच्चों की तादाद 1 मिलियन तक बनती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इदलिब पर होने वाले फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में आम अफराद का जानी नुकसान ज़्यादा होता है और इन हमलों की वजह से बड़ी तादाद यहाँ से कूच करने पर मजबूर हो जाती है। अप्रैल 2019 से लेकर अब तक शुमाल मगरबी शाम में लड़ाई में तेजी आने से शाम में 1710 आम अफराद मारे गए, जिनमें 337 खवातीन और 503 बच्चे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का एक वफ्द बैरूत के दौरे पर है। मालियाती फंड के वफ्द ने जुमेरात को मीटिंग का आगाज किया है। इसका मकसद लबनान को माशी बहरान से निकालने के लिए जरूरी इक़दामात पर गौर ख़ौस करना है। इसी सिलसिले में वफ्द ने लबनान के वज़ीर-ए-आज़म हसन दियाब से मुलाकात की और मुल्क को माशी दलदल से निकालने पर तबादला ख्याल किया। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के शहर अवांशी में जुमेरात की सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए। एक ट्रक और एक मुसाफिर बस आपस में टकरा गईं, जिसकी वजह से हादसा पेश आया।
इस हादसे में 23 अफराद जख्मी हुए हैं। ख्याल है कि हिंदुस्तान में हर साल 1,10,000 अफराद सड़क हादसात के शिकार होते हैं। चीन में कोरोना वायरस से हलाक हुए अफराद की तादाद 2100 से तजावुज कर गई है, जबकि इस मौलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 76,000 से ज्यादा है। अच्छी बात यह कि मुतासरा अफराद की तादाद में पहले की बनिस्बत कमी आई है। चीन में कोरोना वायरस का कहर कुछ कम होता नजर आ रहा है। चीन हुक्काम के मुताबिक मुल्क में वायरस के नए केसेस में काफी हद तक कमी वाक़ई हुई है। चीनी हेल्थ कमीशन के मुताबिक बुध के रोज 394 नए केसेस की तस्दीक हुई और 14 हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि मंगल के रोज नए केसेस की तादाद 1749 थी। चीनी हुक्काम के मुताबिक चीन में मजमूई तौर पर वायरस से हलाकतों की तादाद 2118 है और मुतासरीन की तादाद 75,000 से जायद है, जबकि चीन के मरकजी शहरों में वायरस से मुतासिर होने वाले 16,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशें रंग ला रही हैं। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के समिट के मौके पर लाओस में कहा कि अफरा तफरी और आलमी सतह पर फैलने वाली तशवीश के बावजूद कोरोना वायरस की यह किस्म काबिल इलाज है और इसके फैलाव पर कंट्रोल पाना भी मुमकिन है। वहीं चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस से ईरान में भी 2 अफराद हलाक हुए हैं। ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज जिन 2 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई वो दोनों हलाक हो गए, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में कोरोना वायरस से हलाकतों का ये पहला केस है। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक मरने वाले अफराद का ताल्लुक जनूबी तेहरान से था और वायरस के बाइस इनके गुर्दे शदीद इन्फेक्शन से मुतासिर हुए। गुज़िश्ता माह मशरिक़ वस्ता में मुत्तहिदा अरब अमारात पहला मुल्क था जहां कोरोना वायरस के केसेस सामने आए थे। ताहम ईरान में हलाकतों से मशरिक़ वस्ता में वायरस से होने वाली ये पहली हलाकत है, जबकि अब तक फ्रांस, जापान, फिलिपाइन और ताइवान में भी एक हलाकत हुई है। दूसरी जानिब जापान के शिप में भी 2 अफराद के वायरस से हलाक होने की तस्दीक हुई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मरने वाले दोनों जापानी शहरी थी और उनकी उम्रें तकरीबन 80 साल थी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि वायरस से मरने वाले दोनों अफराद को गुज़िश्ता हफ्ते शिप से बाहर निकाला गया और इन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी। जापान के डायमंड प्रिंसेस शिप में 621 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। डायमंड प्रिंसेस शिप में तकरीबन 3,700 अफराद मौजूद हैं, जिनमें से ऐसे मुसाफिर जो वायरस से मुतासिर नहीं हैं, उन्हें 14 रोज की अलहदगी के बाद जाने की इजाजत दी जा रही है। जापान ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए HIV का तरीका इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस से न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के कई ममालिक की मईशत लड़खड़ा गई है। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुख्तलिफ एयरलाइंस ने चीन आने और जाने वाली परवाजें कम या रोक दी हैं। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस की तशखीस गुज़िश्ता बरस 31 दिसंबर को चीन के सूबे हुबाई में हुई थी, जिसने अब तक दुनिया के 30 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी कोरोना वायरस को संगीन खतरा करार दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रंप के 2 रोजा दौरे का आगाज 24 फरवरी को अहमदाबाद से होगा। अमेरिकी सदर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में वजीर आजम मोदी की मौजूदगी में 1 लाख लोगों से खिताब करेंगे। बेहद खास होगा 24 फरवरी का वो दिन जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की सरजमीन पर वजीर आजम मोदी के साथ होंगे। ट्रंप के इस दौरे को शानदार और यादगार बनाने के लिए अहमदाबाद में खास तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरे के दौरान ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकी एयरफोर्स का हरक्यूलिस तैयारा भी 200 सिक्योरिटी एहलकारों के साथ अहमदाबाद पहुंच चुका है।
आप देख सकते हो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में अभी उसका जो एयरफोर्स 1 का प्लेन है वो चाहे वो सुरक्षा का सामान है वो लेकर आया है। अब जान लीजिए सदर ट्रंप के दौरे और इनके इस्तकबाल की तैयारियों के बारे में। 24 फरवरी को अमेरिकी सदर ट्रंप अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सदर ट्रंप के साथ इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी होंगी। सबसे पहले सदर ट्रंप एयरपोर्ट से साबरमती साहिल पर बने गांधी आश्रम जाएंगे। 24 फरवरी को ट्रंप अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मोटेरा स्टेडियम में ट्रंप के साथ पीएम मोदी 1 लाख लोगों से खिताब करेंगे। 24 फरवरी को ही शाम में ट्रंप अपनी बेगम के साथ ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। 25 फरवरी को ट्रंप और मेलानिया का राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबाल होगा और 25 फरवरी को ट्रंप महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने राजघाट भी जाएंगे। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयरपोर्ट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा तक 22 किलोमीटर तवील रोड शो होगा और इस दौरान लाखों लोग पीएम मोदी और सदर ट्रंप के इस्तकबाल में खड़े होंगे। I happen to like Prime Minister Modi a lot, and he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world, so it's going to be very exciting. सदर ट्रंप के इस दौरे के दौरान कारोबारी मुआहिदा होने के भी इम्कानात रोशन हो रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में सदर ट्रंप वाज़ेह तौर पर कुछ कहने से बच रहे हैं। Well, we can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. वाज़ेह रहे कि 2019 की पहली तिमाही में अमेरिका ने 45.3 अरब डॉलर की अशिया हिंदुस्तान को बरामद की थी। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान कारोबार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये दौरा दोनों मुल्कों के सकाफती और सिफारती ताल्लुकात तो मजबूत करेगा ही, इस दौरे से दोनों ममालिक के कारोबारी रिश्ते भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इजरायली महकमे पुलिस में पहली बार बाहिजाब खातून का तकर्रुर किया गया है। इस पुलिस अफसर का नाम सबरीन सादी है और ये इजराइल में रहने वाली फिलिस्तीनी शहरी हैं। इजरायली पुलिस की वर्दी में सबरीन की तस्वीर जारी होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। इसराइल के महकमे पुलिस में पहली मर्तबा एक बाहिजाब खातून की तकर्रुरी की गई है। ये इसराइल में रहने वाली फिलिस्तीनी शहरी है। इसराइल पुलिस की वर्दी में सबरीन सादी की तस्वीर जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसराइली पुलिस में अपनी बहादुरी का जलवा दिखाने वाली सबरीन सादी का कहना है कि पुलिस एक अच्छी जगह है और वो तरक्की के साथ साथ खुद को मुकम्मल करने और मसावात का एहसास मुहैया करती हैं। सबरीन सादी मुसलमान होने पर भी फख्र करती हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस्राएली पुलिस एक ऐसी जगह है जिसने उसे सफ़ों में आगे बढ़ने और पेशावराना उमंगों को हासिल करने की इजाज़त दी है। इस्राएली पुलिस में जाने के फैसले की वजह से उसकी बिरादरी में रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने उसे धमकियां भी दी, ताहम वो कहती हैं कि इन्हें खतरों का खौफ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ खुदा से डरती हैं। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर के तर्जुमान ऑफिर गैंडलमैन ने सबरीन की तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा कि वो इसराइल के फलस्तीनी शहरियों पर फख्र महसूस करते हैं, जबकि फलस्तीनी शहरियों के जरिए इसराइल पर इम्तियाजी सलूक बरते जाने का इल्जाम आयद किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।